Is the screen visible to everyone? Yes, sir. So in previous class, we have studied about how to calculate or how to find out the inverse Z transform by using long division method and partial fraction method. Okay, and in this class we will see how to calculate find out the inverse Z transform by using another two methods. That is, first one is residue method and second one is convolution method. Okay, so before first we will see how we'll calculate the inverse Z transform using residue method. So calculation calculation of handwriting बहुत ही खराब हो रहा है. एक मिनट. Calculation of inverse Z transform using residue method. So first tell me, what do you mean by residue? Residue का मतलब क्या होता है? What do you mean by residue? रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? एनीवन? सर, जो हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ रहता है. Okay, good. That is something that remains after a part सर, is. रिमाइंडर. हाँ, that is residue means something remains after a part is taken. So now how we will apply in Z transform? Okay, हम Z transform में ये something is taken and then whatever the part is remaining we have to consider this. Now how we will apply in Z transform? So suppose Z transform का एक क्या होता है? एक लिमिट होता है. सपोज 0 to n लिमिट है. सो समथिंग हैज बीन टेकन. सपोज वन टर्म हैज बीन टेकन. एक टर्म यहां से ले लिया गया, तो बाकी कितना पार्ट रहा? 0 to n minus 1. सो ये कॉन्सेप्ट लगा के वी हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग रेसिड्यू मेथड. के एक पार्ट हम ले लेते हैं, बाकी कितना पार्ट रहा? 0 to n minus 1. दैट इज n minus 1 तक एक पार्ट रह गया. सो ये यूज हम कहां करते हैं? जहां पे तुम्हारा लिमिट दैट इज n नॉट इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है, n नॉट इक्वल टू इंफिनिटी बट n हैज अ सर्टेन लिमिट. जहां पे मेरा एग्जैक्ट एक बाउंडेशन लिमिट पे है, वहीं पे हम रेसिड्यू मेथड यूज करते हैं. सपोज मैंने अगर कहा कि तुम्हारे पास अनगिनत मनी है, ठीक है, सो आफ्टर टेकिंग समथिंग इट इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट द रिमेनिंग पार्ट. ठीक है, अगर मैंने कहा तुम्हारे पास अनगिनत पेपर्स है, ठीक है, दैट इज A4 साइज का पेपर्स, ब्लैंक पेपर शीट तुम्हारे पास अनगिनत है. ठीक है, अनकाउंटेबल. सो इफ आई विल टेक सम पार्ट ऑफ योर पेपर, देन व्हाट एवर इज द रिमेनिंग पार्ट इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट. बट अगर मैंने कह दिया कि तुम्हारे पास 10 पेपर्स हैं और मैं एक पेपर वहां से ले रहा हूं, तो बाकी कितना पार्ट तुम्हारे पास रहा? ऑब्वियसली 10 minus 1, दैट इज
residue, then it can be calculated easily. So residue method will be used in the equation which has certain limit. So for be careful, okay? It is used when limit is mentioned, that is range is mentioned, that is n 0 to n और माइनस n to n. ठीक है, यहाँ पे लिमिट मेंशन किया गया है. अगर मैंने कहा कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, ये लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है. सो इन दिस केस रेसिड्यू मेथड विल नॉट बी अप्लाइड. So first of thing, you have to use the residue method when you have the limited value of range, that is 0 to 5, 0 to 1, minus 1 to 1, minus 5 to plus 5. यहाँ पे जैसे तुम्हारा लिमिट मेंशन करेगा, then only you have to use the residue method. ठीक है. So next is how to calculate. ठीक है. So suppose x of z is given. X of z is given some equation, given by some equation. Now whenever you have to calculate the x of n, then this method is used, that is residue of x of z multiplied with x of z, ये multiplication है, हाँ, that is multiplied with x of z into z to the power n minus 1. ये तुम्हारा मेंशन करना पड़ेगा. दिस पोर्शन हैज टू बी मेंशन के रेसिड्यू हो गया, तुम्हारा एक ले लिए हो. ठीक है, 1 हैज बीन टेकन फ्रॉम योर 9 A4 पेजेस. ठीक है, सो 1 into x of z, that is x of z, that means तुम्हारे पास कितना पेज रह गया अभी, 10 minus 1. This has to be calculated. ठीक है, so this is the main formula to calculate the residue method, to calculate the inverse z transform using residue method. ठीक है, और यहां पे क्या होगा, at pole of रेसिड्यू, यहां पे तुम्हारा पोल मेंशन करेगा. अगर पोल मेंशन नहीं करेगा तो नो मैटर, तुमको हर एक चीज को रेसिड्यू लेना है, हर एक टर्म को कंसीडर करना है. नाउ व्हेनेवर आई विल गिव द एग्जांपल, द इक्वेशन विल बी मोर क्लियर. सो सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. I am giving you an example, that is let it x of z equal to z to the power 18 divided by z 1 minus 2, z minus 1, z minus 4. This example has been taken. Let it be. And it is mentioned that x of z converges in mod z इक्वल टू 1. ओके, ये तुम्हारा x ऑफ n फाइंड करो, x ऑफ n फाइंड करो, एंड उसके बाद एक एक्स्ट्रा पार्ट में ऐड करता हूं, x ऑफ 2 फाइंड करो. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, दैट इज x ऑफ z इज गिवन, आई हैव टू फाइंड आउट x ऑफ n. I have to find out x of n. So how? Okay, so now how I have to find out x of n by using residue method. So first of all, whenever you are going to solve the equation, for very first thing, I have to write the question, that is x of z, sorry, that is x of z equal to, again write the equation, z to the power 18, z minus half, z minus 1, z minus 4. This is taken. Now
Very first, I have to calculate the pole. First step, calculate the poles. So what are the poles? Tell me by seeing the equation. What are the poles? पोल कौन कौन सा होगा? anyone quick, by seeing the equation तुरंत बोलो पोल कौन कौन सा होगा? सर एक्स हाँ, पोल कहाँ है? पोल नीचे वाला पोर्शन है, तो z माइनस हाफ इंटू z minus 1 z minus 4 all will be equal to 0. Now what will be the value of z? Half, 1 and 4. Very easy. So poles are half, 1 and 4. These are the poles. So I have to take the part from the equation where the value of z is half, 1 and 4. So now your x of n equal to, suppose first I am taking the part from this equation where z equal to half. So z equal to half, that means z minus 1 by 2 into the equation z to the power 18. Okay, next z minus half, z minus 1, z minus 4 multiplied with z to the power n minus 1. This should be mentioned, okay, each and every step, where z equal to half. Then plus, मैंने एक हाफ से ले लिया, z इक्वल टू हाफ वाला पोर्शन उठा लिया. नेक्स्ट इज 1, z इक्वल टू 1 वाला पोर्शन अब उठाऊंगा इक्वेशन से. जो z माइनस 1 इंटू z टू द पावर 18, z माइनस हाफ, z माइनस 1, z minus 4 into z to the power n minus 1. Okay, and when z equal to 1 plus, now 1 वाला portion भी उठा लिया. Now 4, z minus 1. Now second option is residue. Now z minus 1, z to the power 18 into z to the power n minus 1. ये n minus 1 टर्म लिखना अगर भूल जाएगा तो टोटल कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक पार्ट उठाने के बाद तुम्हारे पास बच के कितना रहा है? n minus 1. ठीक है, सो ऑल डिवाइडेड बाय z minus half, z minus 1, z minus 4, and one more thing, this is 4. okay, at z equal to 4. सो ये हो गया तीन पार्ट मैंने उठा लिया. उठाने के बाद मेरा रेसिड्यू इतना बच रहा है. सो नाउ कैलकुलेट दिस वन. z माइनस हाफ will be cancelled out in this equation, z minus 1 will be cancelled out in this equation, and z minus 4 will be cancelled out in this equation. Now what is the final equation? That is x of n equal to z to the power 18 into z n minus 1, z minus 1, z minus 4, where z equal to half, plus z to the power 18, z n minus 1, z minus half, z minus 4 at z equal to 1, plus z to the power 18, z n minus 1 divided by z minus half, z minus 1 at z equal to 4. So this will be the x of n. Now मेरा यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से देखो. ठीक है, क्वेश्चन को गौर से देखो. क्वेश्चन को अगर गौर से देखोगे तो क्या देखोगे कि यहाँ पे मेरा एक कंडीशन दे दिया गया है. ax of z converges into z mod z equal to 1. That means z का वैल्यू जो है
इन बिटवीन -1 से 1 तक ही रहेगा, उसके बाहर उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, इक्वल टू दिया है, दैट इज नॉट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, दैट मीन्स -1 और 1 में ही इसका वैल्यू कन्वर्ज होगा। दैट मीन्स z का वैल्यू -1 एंड 1 में रहेगा। तो इस इक्वेशन पे देखो, z का वैल्यू 1 कहां पे है, यहां पे है। ठीक है, यहां पे z का वैल्यू हाफ है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू z इक्वल टू 1 और -1, सो दिस पोर्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड। यहां पे देखो z इक्वल टू 4, इट इज नॉट इक्वल टू 1 और -1, सो इट विल also will not be considered. Only this, that is z equal to 1, which is according to your condition, that is z equal to 1 and -1. So z equal to 1 hai, so I will consider this value only. So what will the value of x of n now? X of n equal to z to the power 18, z to the power n minus 1, z minus half, z minus 4. That is the equation. Okay, so now I have to find out at z equal to 1. Now put the value of z, that is 1. 1 to the power 18 is obviously 1, and 1 to the power n minus 1. So 1 to the power n minus 1, that is 1 minus half, that is 0.5 multiplied with 1 minus 4, that is -3. So 1 to the power 1, that is 1, obviously it will give you 1, and this is minus 1.5. So its equation value is 1 by 1.5. That is the x of n. Okay, so like this you can find out the x of n. Now another question is there, that is x of 2 का वैल्यू क्या रहेगा। So x of n का वैल्यू ये है, so x of 2 का वैल्यू क्या रहेगा, that is 1 to the power 2 minus 1 minus 1.5. Okay, so it will give you obviously 1 by 1.5, that is 1 to the power 1, that is also 1, so 1 to the power 1 by 1 minus 1 by 1.5, that is x of n. So this is how we will use the residue method. Now ये तो हो गया कि मेंशन किया हुआ है, रेसिड्यू कहां पे मेंशन किया गया है, इक्वेट कर दिया गया है। ठीक है, आरओसी। नाउ आरओसी अगर तुम्हारा फ्लक्चुएट रहेगा कि एक रेंज तक रहेगा तो क्या होगा। सो नाउ लेट टेक अनदर एग्जांपल, that is x of z equal to 1 by 1 minus by 4 z inverse, and this is 1 by 9 z to the power -2. इसका तुम इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालो, x of n निकालो कितना है, एंड यहाँ पे मेंशन है ROC, दैट इज mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स z इज ग्रेटर देन -1/3 एंड 1/3, दैट मीन्स ये अगर हो गया तो ये अगर 1/3 है तो इसका जो रेंज है, इस रेंज के बाहर वाला पोर्शन का जितना वैल्यू है, दैट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड। ओके, सो नाउ use the similar method, solution, use the similar method. Okay, so first of all मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to write the question 1 by 1 by 4 z to the power -1, 1 by 1 by 9 z to the power -2. Okay, now simplify this, that is 1 by 4z 1 minus 9z square. So इसको इक्वेट करो, that is 4z minus 1 by 4z. Next is 9z square minus 1, 9z square. So z
z will be cancels out. So इक्वेशन क्या होगा 4z. ओके, सो ये हो गया 1 माइनस, सो z ऊपर चला जाएगा और सिंपली, इतना जरूरत नहीं है, सिंपल सोल्यूशन, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, टाइम टेकिंग हुआ. मुझे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में जितना कम टाइम हो लगता है उतना ही कम टाइम में दूंगा. ठीक है, तो यहां से तुम z को कॉमन ले लो, z माइनस 1/4. यहां से यहां क्या होगा 1/9, बट दैट मीन्स 1/3z². दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो 1 माइनस 1/3z माइनस 1 प्लस 1/3z माइनस 1. सो यहां से अगर z को कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा z माइनस 1/4. यहाँ पे क्या आएगा z कॉमन ले लूंगा अगर, सो z प्लस 1, तो z बाहर नहीं आ जाएगा तो ये हो जाएगा z²/9. So entire equation will be z plus 1/3. एक मिनट, ये हो जाएगा 1/z. इसको z अगर कॉमन ले लेता हूँ तो 1/4 z minus 1 z/4 z minus 1/4. Okay, so now after calculation it will become z/3. क्योंकि यहाँ से z टू द पावर -2 कॉमन आएगा, सो z टू द पावर -2 और इधर z टू द पावर -1 है, सो z टू द पावर -2 एंड z टू द पावर -1, सो इट विल गिव z. ठीक है, 1/z z इनवर्स. सो 1/z इनवर्स को ऊपर डालूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा z. सो दिस इज द इक्वेशन. सो आई विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस, सिंप्लीफाइड इक्वेशन z minus 1/4 into z plus 1/3 and z minus 1/3. ओके, सो नाउ देखना पड़ेगा इसका पोल कहां पे है. सो x ऑफ z, मेरा सोल्यूशन में क्या आया था, x ऑफ z इक्वल टू z minus 1/4 z plus 1/3 and z minus 1/3. गॉट इट? यहां तक समझ में आया कैसे आया इक्वेशन? सिंपली सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को. समझ में आया यहां तक कैसे आया? Yes, sir. ओके, सो नाउ पोल कहां कहां पे आएगा, टेल मी, कहां कहां पे तुम्हारा पोल आएगा? 1/3 minus 1/3. ठीक है, गुड. सो पोल आएगा 1/3. पोल्स एट z इक्वल टू -1/3 एंड z इक्वल टू 1/3. सो इन दोनों पे पोल आएगा. सो नाउ मेरा कंडीशन क्या है, ROC होगा z इनवर्स z दैट इज 1/3. ओके, सो नाउ ये वाला पोर्शन बाद में, अभी नहीं. ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. तो पोल कहां कहां पे आएगा, तो मैं एक पार्ट लूंगा z प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड विथ द इक्वेशन z minus 1/4 z plus 1/3 z minus 1/3 into z n minus 1 at z equal to pole equal to this one. ठीक है, नेक्स्ट वन
कैरी मैं उठाऊंगा, कौन सा पार्ट उठाऊंगा, z इक्वल टू 1/3. सो z इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स z माइनस 1/3 multiplied with the equation 1/4 z plus 1/3 z minus 1/3 multiplied with z n minus 1 at z equal to 1/3. So this will gives you this equation. Okay, up to this कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ कॉन्सिडर आरओसी. आरओसी क्या है, z -1/3 से चालू होगा, दैट मीन्स -1/3. ये अगर -1/3 है और +1/3 है तो इसके बाहर वाला पोर्शन में इसका z ट्रांसफॉर्म इसका इक्वेशन कैरी करेगा. सो आई हैव टू कंसीडर बोथ द पॉइंट्स, दैट इज 1/3 एंड -1/3. सो यहाँ पे दोनों ही है, तो आई हैव टू कंसीडर बोथ द इक्वेशन. ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू. सो z, that is z, so z multiplied with zn minus 1 into z minus 1/4 by z minus 1/3 at z equal to -1/3 plus z into zn minus 1 z minus 1/4 divided by z plus 1/3. ठीक है, at z equal to 1/3. Now put the value of the z in the equation. So in the equation z का वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या आएगा, अगेन आई हैव टू राइट द इक्वेशन फर्स्ट. सो x of n इक्वल टू z into zn minus 1 z minus 1/4. अगर कहीं से कोई मिसिंग हो तो इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, कोई भी टर्म अगर मिसिंग हो. सो z minus 1/3 at z equal to 1/3, sorry, z equal to -1/3 plus z into zn minus 1 z minus 1/4 z plus 1/3 at z equal to 1/3. So now put the value of the z. So value put करो, देखो यहाँ पे क्या है, zn -1 into z, दैट इज इसका वैल्यू 1 है, तो टोटल प्लस हो जाएगा, तो z का टोटल पावर क्या होगा, 1 प्लस n माइनस 1. सो क्या आएगा, दैट इज z टू द पावर n. ठीक है, सो ये पॉइंट, ये टोटल इक्वेशन जो है इट विल बिकम z टू द पावर n z 1/4 z minus 1/3 z equal to -1/3 प्लस यहाँ पे भी सेम थिंग होगा, दिस बिकम z टू द पावर n. सो z टू द पावर n z minus 1/4 z plus 1/3 at z equal to 1/3. ठीक है, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द z. कितना आएगा, 1/3 टू द पावर n, 1/3 टू द पावर n multiplied with 1/3 -1/3 -1/4. कितना आ रहा है, -1/3 -1/4. So it will becomes 12 -4 -3, that is -7/12. So into -7/12. यहाँ पे क्या आ रहा है that is -1/3 -1/3, that is 2/3. Okay, sorry, हाँ, -2/3 प्लस हाँ ठीक है,
प्लस z टू दी पावर 1 बाई माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस एंड z टू दी पावर 1 बाई 3 टू दी पावर n। ठीक है, सेम थिंग 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 कितना आ रहा है, दैट इज 12, 4 माइनस 3 दैट इज 1 बाई 12, 1 बाई 12 and this is 1 by 3 plus 1 by 3, so 2 by 3. Now simplify this, so minus will be cancels out, ठीक है, यहाँ पे 3 and ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम थिंग 3 और 4 हो जाएगा, so your entire equation becomes minus 1 by 3 to the power n multiplied with 7 by 8, 7 by 8 plus minus 1 by 3 to the power n multiplied with 1 by 8. So this is your z transform. Okay, so this is nothing but your x of n. So find out the result. So see, in case of your residue method, I have to find out the exact value. ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये हो गया। ओके, गॉट इट, समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। यस सर। ओके, सो ये रेसिड्यू मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। सपोज अगर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हो या लॉन्ग डिवीजन मेथड हो या रेसिड्यू मेथड है, कोई भी मेथड अगर तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो ऑलवेज यूज आइदर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और रेसिड्यू मेथड, बिकॉज इसका कैलकुलेशन जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन देता है, उतना तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। इसका स्टेप भले ही ज्यादा हो, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे इंफिनिटी लेवल तक चलता रहता है, सो ऑब्वियसली इट विल कॉम्प्लेक्स। कोई भी चीज का अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है तो ऑब्वियसली वी विल कंसीडर द मेथड इज कॉम्प्लेक्स मेथड, ठीक है। सो दैट ऑलवेज यूज इफ the question in the question the method will not be mentioned, then use either partial fraction method or residue method, ठीक है। So that is the residue method. Now next we will move to the convolution method, ठीक है। So convolution method, तो convolution method so next is inverse Z transform using convolution method. Convolution method. So according to this method, ठीक है, since this is totally named as convolution method, so obviously first step is we have to know about convolution. So obviously convolution method तुम लोग को पता है कैसे convolution निकालते हैं, ठीक है। convolution method means वहां पे दो इक्वेशन रहेगा, two equations will be there and you have to convert the two equation, that is equation 1 into equation 2. Okay, so now again you have to find out the convolution one. So next is I am giving an example. एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं कि एग्जाम्पल देके तुम्हारा रिलेट करना इजी होगा rather than using the formula, ठीक है। फॉर्मूला इसका कुछ नहीं है, कॉन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है नॉर्मल फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, ठीक है। सो लेट इट बी द इक्वेशन x of z equal to x z square z minus 1 by 4 ROC, that is mod z greater than 1 by 4. So 1 by 4 इसका पोल कहां पे होगा, 1 by 4. So यहाँ पे ROC minus 4 से प्लस 4 है, so 1 by 4 को मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है और कोई पोल नहीं है, एक ही पोल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई विल गो टू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पोल. कैलकुलेशन ऑफ पोल, दैट इज z इक्वल टू 1/4. 1/4 में इसका पोल रहेगा. दैट मीन्स इसका जो इक्वेशन है आरओसी है, दैट इज 1/4 माइनस 1/4. इसके बाहर इक्वेशन इसका लाई करेगा. ठीक है. सो नाउ हाउ टू फाइंड आउट. देखो कॉन्वोल्यूशन का पहला मोटिव क्या है, पहला प्रिंसिपल क्या है, दो इक्वेशन होना चाहिए, पर यहाँ पे मेरा एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है. सो नाउ हाउ विल गेट. ओह सॉरी, इक्वेशन विल बी देयर z². ठीक है. तो कॉन्वोल्यूशन मेथड. तो यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन कैसे होगा, एनी आइडिया हाउ टू मेक अ सिंगल इक्वेशन इनटू टू इक्वेशंस? Any idea? Any idea? नो सर. ओके. मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग को 5 मिनट टाइम देता हूँ. ठीक है. आफ्टर अभी कितना टाइम हो रहा है, 11:70. ठीक है. 11:25 से मैं फिर से क्लास स्टार्ट करूंगा. मैं तुमको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. ठीक है. स्क्रीन मेरा खुला रहेगा. मीटिंग लीव करने की जरूरत नहीं. अगर कोई मीटिंग लीव करते हो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट, ठीक है, अवेलेबिलिटी, तो तुम मीटिंग लीव कर सकते हो अभी 5 मिनट के अंदर. दैट इज 11:25 से मैं क्लास अगेन स्टार्ट करूंगा. और मैं और उस दौरान तुम 5 मिनट में क्या करोगे, तुम्हारा एक छोटा सा असाइनमेंट है, कॉन्वोल्यूशन को फिर से देखो. ठीक है. क्योंकि मैं जब कॉन्वोल्यूशन बताऊंगा अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन द कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ एंड आफ्टर 5 minutes. Okay. So now what we should do, यहां पे देखो ये जो एक इक्वेशन है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं. डिवाइड द एंटायर इक्वेशन इन टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. तो x of z I have to write in the format of x1z multiplied with x2z. In this format I have to write. So in this format में कैसे लिखूंगा, मेरा मेन इक्वेशन है x of z इक्वल टू z स्क्वायर 1 minus 1/4 square. Sorry, z minus 1/4, z minus 1/4. ये मेरा इक्वेशन है. नाउ आई हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज z minus 1/4 multiplied with z by z minus 1/4. Can I write this? Yes, sir. So this part belongs to x1z and this part belongs to x2z. Now मेरा दो इक्वेशन मिल गया. नाउ मेरा अभी कॉन्वोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है. सो xz इक्वल टू z minus 1/4
ये एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है z माइनस 1/4। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। नाउ कॉन्वोल्यूशन मेथड में क्या होगा, दैट इज यहां से जब मैं यूजिंग कॉन्वोल्यूशन मेथड so I have to use the convolution property of z transform, that is x of z को if x of z equal to x1z into x2z, then the convolution property can be written as convolution property, that is x of n equal to x1n convolution x2n। सो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, दो z इनवर्स निकालना पड़ेगा, z इनवर्स दैट इज यहाँ पे देखो 1/4z। सो इसका वैल्यू क्या होगा 1/4 टू द पावर n, क्योंकि a टू द पावर n का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा z/z माइनस a, ये इसका z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो a टू द पावर n दैट इज z माइनस z/z माइनस 1। सो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/4 है, सो 1/4 टू द पावर n, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये हो गया एक, दूसरा हो जाएगा दैट इज x ऑफ n, दैट इज दूसरा हो जाएगा अगेन 1/4 टू द पावर n। सो दैट मीन्स x1n इक्वल टू 1/4 टू द पावर n एंड x2n that is 1/4 to the power n। So now this belongs to x1n convolution with x2n, that is x of n। So now what is the convolution, यहाँ पे मेरा x1n convolution with x2n हो रहा है। So what is the convolution formula, that is summation of, यहाँ पे k equal to minus infinity to plus infinity है, that is x1k and n minus k, और यहाँ पे मेरा x1n है क्या है 1/4 to the power n and x2n है 1/4 to the power n। So now put this value in this equation। So अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, so that is वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा क्या आएगा समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x1n क्या है 1/4 k मल्टीप्लाइड विथ 1/4 n के बदले n माइनस k होगा, सो 1/4 n माइनस k, सो दैट विल बी द समेशन। सो इसको सिंप्लीफाई करो, k इक्वल टू minus infinity to plus infinity 1/4 into this, so it will gives you 1/4 k plus n minus k, so it will gives you 1/4। so summation k equal to minus infinity to plus infinity 1/4 to the power n multiplied with 1, I can write, so 1 to the power n, यहाँ पे k variable है, so 1/4 will be taken outside and this will gives you k equal to minus infinity to plus infinity 1। so now it will gives you it will gives you 1/4 n। now देखो यहाँ पे क्या है ROC ग्रेटर देन माइनस
z equal to plus minus infinity. So I am taking the value where limited value. So k equal to 0 to n. Since यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये किया, मैं सोचा था तुम लोग बताओगे, लेकिन तुम लोगों से कोई रिप्लाई आया नहीं, तो मुझे ही बताना पड़ेगा. दैट इज a टू द पावर n u n का z ट्रांसफॉर्म होगा z n दैट. ठीक है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक टर्म छोड़ा था, बट इट विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय यू. सो दैट मीन्स थॉरोली तुम लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो. ठीक है, सो un अगर होगा दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, 0 टू n होगा. सो 0 टू n इंटू 1 सॉरी 0 टू n समेशन एंड द वैल्यू इज 1. सो 1 का समेशन k इक्वल टू 0 टू n होगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज 1/4 टू द पावर n इंटू n प्लस 1. एज from your plus 2 knowledge, that is n equal to 0 to m summation of 1. So that will gives you m plus 1. So that is plus 2 level. Okay. So ये तुम्हारा plus 2 में summation. Okay. So this will gives you n plus 1. So that is the answer. So मेरा आंसर क्या है, x of n equal to 1/4 to the power n plus 1. So जब तक तुम्हें कॉन्वोल्यूशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्वेश्चन में मेंशन ना हो, नेवर यूज दिस मेथड. बिकॉज यहाँ पे क्या है, तुम्हें z ट्रांसफॉर्म, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म एक बार पहले निकाल लेना पड़ रहा है. ठीक है, इन दिस स्टेप. सो डोंट यूज दिस मेथड until and unless the method will be mentioned in the question. Convolution method and long division method try to avoid. ठीक है, सो यूज करना कौन सा करना है, जब मेंशन नहीं हो तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड रेसिड्यू मेथड, ये दो मेथड यूज करना है. और अवॉइड कौन सा करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड convolution method. If method will not be mentioned in question paper, ठीक है, then you have to use two methods, that is partial fraction method and residue method, and you have to avoid long division method, convolution method. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये तुम यूज मत करो, ठीक है, तुम यूज कर सकते हो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. नाउ तुम लोगों का एक टास्क है, ठीक है, वन टास्क कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया गया है दैट इज x ऑफ z z² 1 - 2. ओके, ये जो इक्वेशन दिया गया है, दिस इज द टुडेज असाइनमेंट. आफ्टर दिस वीक, ठीक है, सैटरडे आई विल sort out all the assignments, and regarding you have to submit this by next week. ठीक है, नेक्स्ट वीक फर्स्ट क्लास, दैट इज मंडे से पहले तुमको सबमिट करना है. ठीक है, मेरे व्हाट्सएप में डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो, या मेरा जो मेल आईडी है वहां पे डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो, या टीचमिंट का जो ऑनलाइन ये है वहां पे शायद मैंने ये ब्लॉक किया हुआ है कि एक्सेप्ट योर एजुकेटर विल नॉट बी, यू कैन पोस्ट. सो तुम क्या करोगे, मेरा व्हाट्सएप में आइदर और मेरा मेल पे तुम अपना असाइनमेंट डालोगे. ठीक है, मैं ये असाइनमेंट लिख के दे रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड. मैं सेकेंड इंटरनल का मार्क्स अभी डिस्प्ले नहीं किया हूं. ठीक है, सो ऑल मार्क्स 50% मार्क्स विल बी फ्रॉम असाइनमेंट, 20% मार्क्स विल बी attendance and attentiveness, class performance,
and rest 30% marks will be given from your internal question. बिकॉज इंटरनल में क्या होता है मुझे भी पता है, क्वेश्चन मिलता है तुरंत, मैं तुम लोगों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, दैट इज द जनरल वन, कि तुम लोग क्या करते हो, गूगल सर्च मारते हो या कोई एक सॉल्व करते हो, वही सर्कुलेट होता है, ठीक है। सो आई विल डिवाइडेड द एंटायर मार्क्स इन 50 20 30, 50% फ्रॉम असाइनमेंट हैंड रिटेन, ये नहीं कि तुम दूसरा एक दोस्त का कॉपी कर लो और ये कर लो, हैंड रिटेन असाइनमेंट यू हैव टू सबमिट, दैट विल कैरी 50% मार्क्स ऑफ योर इंटरनल मार्क्स, ठीक है। एंड 20% विल बी गिवन फ्रॉम द अटेंटिवनेस, ठीक है। मैं शुरू में ही बोल चुका हूं, मैं किसी को अटेंडेंस के लिए बोलूंगा नहीं कि तुम्हें क्लास में रहना ही है, तुम्हें क्लास करना ही है, ठीक है। मैं देखूंगा मेरा अगर एक भी स्टूडेंट हुआ तो मैं उस एक स्टूडेंट को लेकर मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा मेन मोटो है मेरा सिलेबस खत्म करना, ठीक है। एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट को लेकर ही मैं क्लास करूंगा, बट वो ये जो एक स्टूडेंट मेरा क्लास कर रहा है उसको भी कुछ फायदा होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टूडेंट मेरा क्लास नहीं कर रहा है तो वो घर बैठे या जस्ट स्टूडेंट है इसीलिए उन लोगों को मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो असाइनमेंट में जो भी दे रहा हूं मैं एंड ऑफ द वीक में हर एक असाइनमेंट को शॉर्ट आउट करूंगा कि क्लास में मैंने कितना असाइनमेंट दिया, और मंडे में दूसरा दिन चेक करूंगा कि कितना असाइनमेंट जमा पड़ा है, ठीक है। सो असाइनमेंट इज, ये जो इक्वेशन है x ऑफ z दैट इज z स्क्वायर 1 minus 1 by 4 square at ROC at mod z greater than 1 by 4, ठीक है। फाइंड आउट x of n by using residue method, that is your assignment, okay। so next is छोटा सा और एक है, 10 मिनट लगेगा, ठीक है, इट इज द लास्ट टॉपिक, 10 मिनट लगेगा, दैट इज यूजिंग ऑफ इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। मैं ये इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो कर रहा हूं, इतना जो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म किया, 4 प्रोसेस है, ठीक है, ये इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म मैं कहां यूज करूंगा, दैट इज यूज ऑफ इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो कहां करूंगा, सो इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इम्पल्स रेस्पॉन्स, ये इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालने के लिए यूज किया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सपोज द रेस्पॉन्स इक्वेशन इज गिवन y ऑफ n माइनस 3n-1, और z ट्रांसफॉर्म तुम्हारा ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा एक चैप्टर है, हर एक कोई भी एक आर्बिट्ररी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूज करो जहां तुम्हारा इसी सब्जेक्ट है, ठीक है, वहां पे देखोगे एक या दो क्वेश्चन तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म से आता ही है। आईएएस हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो, तुम्हारा गेट हो, एनटीपीसी हो, कोई भी है, जेड ट्रांसफॉर्म से तुम्हारा एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो 3y ऑफ n-1 माइनस 4y ऑफ n-2 इक्वल टू x ऑफ n प्लस 2x ऑफ n-1. Okay, now you have to find out what will be the impulse response. So impulse response means impulse response किसको बोलते हैं, response that is output response by input response, ये हो गया तुम्हारा impulse response. सो इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आई हैव टू फाइंड आउट द जेड ट्रांसफॉर्म, सो y ऑफ n दैट इज y ऑफ z माइनस y ऑफ 3 इंटू y ऑफ z इंटू z टू द पावर -1 माइनस 4 इंटू y ऑफ z टू द पावर -2,
ठीक है, इक्वल टू एक्स ऑफ जेड प्लस 2 जेड टू द पावर माइनस 1 एक्स ऑफ जेड। नाउ इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा? y ऑफ z, इनपुट को अलग करो, आउटपुट को अलग है, सो y ऑफ z 1 minus 3 z inverse minus 4 z to the power minus 2 equal to x of z 1 plus 2 z inverse। ये हो गया इसका अरेंजमेंट। ठीक है, नाउ इसको y of z by x of z निकालते हैं, y of z by x of z, so it will gives you 1 plus 2z inverse, 1 plus 2z inverse by 1 minus 3 z inverse plus minus 4 z to the power minus 2, that is nothing but your h of z equal to 1 plus twice z to the power minus 1 1 minus 3 z inverse minus 4 minus 2। now इसको क्या करेंगे, इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, that is z into z plus 2। ये देख लेना मेरा ठीक जा रहा है कि नहीं। ठीक है, 4z square that is 1 and 3, that is 3 now, 1 and 4, 1 and 4, हाँ, so z minus 4 z plus 1। okay, the equation will be written like this। now you have to find out the inverse z transform of h of z, and your next assignment is suitable methods to find out h of n from h of z। ठीक है, सुइटेबल मेथड दो है, एक है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और दूसरा है योर रेसिड्यू मेथड। ठीक है, सो यहां पे देखो आरओसी मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, यहां पे कहीं पे भी आरओसी मेंशन नहीं किया हूं, तो डोंट यूज रेसिड्यू मेथड। रेसिड्यू मेथड तभी यूज करोगे जब आरओसी मेंशन होगा, ठीक है, अदरवाइज डोंट यूज द रेसिड्यू मेथड, you have to use partial fraction method। so this is your next assignment। so today I am giving you 2 assignments। ठीक है, first one is you have to find out the z inverse z transform using residue method, ठीक है, from the previous equation, and second one is you have to find out the impulse response by using partial fraction method of inverse z transform। okay, so that much for today, don't leave the class, I will give you the attendance link। okay, before that I am going to stop the recording।